Good morning, friends. I, Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In our subject MEM, today we are going to study about properties of engineering material. So, learning outcomes. After completion of this lecture, learners are able to list properties of material, define mechanical properties of material, compare various properties of material. So, what comes in your mind if you read this word property? प्रॉपर्टी ये शब्द पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? पॉज द वीडियो एंड थिंक. Well, property is a qualitative or quantitative measure of response of material to externally imposed condition like forces and temperature. The practical application of engineering material in manufacturing engineering depends upon through knowledge of their particular properties. Properties help us to know why certain objects are made up from certain material. Different properties of material should be studied because while designing a product, an engineer need to select material to create the product. For selecting, one must assess the properties of each material to ensure that the selected material is suitable for manufacturing the product. So, I think you are clear with the meaning of property. In this subject, we must understand the properties of material. Properties का मतलब होता है गुणधर्म. कोई मटेरियल में क्या विशेषता है, ये जो मटेरियल है दूसरे मटेरियल से क्या डिफरेंस रखता है, ये अगर हमें पता करना है तो प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. हम प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तभी हम सर्टन ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. बराबर है. तो प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. नाउ let us classify the various properties of material. There are n number of properties. बहुत सारी properties हमारे पास available है. Say mechanical properties, thermal properties, optical properties, electrical properties, technological properties, chemical properties, magnetic properties and physical properties. So these are the properties are available, but we are mechanical engineer. We are mechanical engineer and we have to deal with forces and pressures. We have to deal with forces and pressure. So let us discuss only about the mechanical properties. So what do you mean by mechanical properties? So mechanical properties are related with the action of force. It is related with the action of बल के साथ डील करती है. फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, इलास्टिक चेंजेस एंड प्लास्टिक चेंजेस. तो इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो शब्द आता है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी. हमारे पास भी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. से इलास्टिसिटी, plasticity, strength, ductility,
मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, फटीग, क्रीप, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्रीप, डेंसिटी, hardenability. So these are the various properties. We have 16 mechanical properties with us. So let us discuss these properties one by one. So the first property is elasticity. You might have studied in first semester also or second semester also elasticity. So what is elasticity? Elasticity deals with the rubber. Elasticity deals with rubber. So elasticity is the property of material by virtue of which it regains its original shape and size after removal of force. जब हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। अगर वो उसका जो शेप एंड साइज चेंज हुआ तो वह मटेरियल उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज अगर रिगेन करता है, जैसा वो पहले था वैसा वो बन जाता है, उस प्रॉपर्टीज को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है? रबर। रबर इज एन इलास्टिक मटेरियल। ओके, तो ऐसा मटेरियल, ऐसी प्रॉपर्टी जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी से पूरा अलग है, अपोजिट है। ओके, सो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। प्लास्टिसिटी मतलब अगर मटेरियल के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन मटेरियल के ऊपर का जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगा। ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगा, अपने पुराने रूप में वो आएगा नहीं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिसिटी में क्या होगा? फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा मटेरियल का, लेकिन वो ओरिजिनल शेप एंड साइज उसका ले नहीं पाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है? ताकत, बाहुबली। स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू विस्टैंड द डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू विस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है? अगर बॉडी के ऊपर या मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड्स आते हैं तो उसको सहने की क्षमता, उसके वजह से, उस फोर्स के वजह से उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ डिफ्लेक्शन होगा, उसको सहने की क्षमता, विस्टैंड डिफॉर्मेशन, उसको सहने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू विस्टैंड द डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स। There are various strengths are available. There are various strengths are available. Say tensile strength, compressive strength, and shear strength. Ductility. देखो दोस्तों, डक्टिलिटी जो है ये वायर के साथ डील करते हैं। अगर हम किसी मटेरियल के वायर बनाते हैं, थीन वायर, बारीक वायर अगर हम बनाते हैं तो मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी रहती है उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which enables material to draw out into thin wires, to draw out into thin wires। मतलब किसी मटेरियल के वायर्स बनाना, ड्रॉ करना, वायर करना, बनाना मतलब उसको वायर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा मटेरियल से। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। देखो, वायर्स कब बनाएंगे? जब हम मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। तो जब हम मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसके हमें क्या मिलेंगे?
वायर्स मिलेंगे। तो जब उसका डिफॉर्मेशन होता है हम उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आप सभी को पता है कि जो वाइंडिंग्स रहती है वो कॉपर की और एल्यूमिनियम की रहती है, और वाइंडिंग का मतलब भी क्या होता है, वायर्स। वाइंडिंग्स आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स में वगैरह देखी होगी, बराबर है कि नहीं? गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि मैलिएबिलिटी में हम किसी मटेरियल को हैमरिंग करके उसके फ्लैट शीट्स बनाएंगे। कैसे शीट बनाएंगे? फ्लैट शीट्स बनाएंगे। तो अगर हम किसी मटेरियल का शीट बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लैटन इनटू शीट्स, टू फ्लैटन इनटू शीट्स। दूसरी डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी विच एनेबल मटेरियल टू डिफॉर्म बाय कंप्रेसिव फोर्सेस। अगर हमको भैया शीट्स बनानी है तो उसके ऊपर हमें, मटेरियल के ऊपर हमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? कंप्रेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। जैसे इस डायग्राम में देखिए गोल्ड का मटेरियल है, गोल्ड के मटेरियल के ऊपर हमने हैमरिंग किया। क्या किया हमने? हैमरिंग किया, तो जिसके वजह से हमें गोल्ड की शीट मिल गई। तो अगर शीट का जिक्र होता है क्वेश्चन में तो इट इज रिलेटेड विद द मैलिएबिलिटी, एंड अगर वहां पे वायर का जिक्र होता है तो वायर इज रिलेटेड टू डक्टिलिटी। गॉट इट? नेक्स्ट, हार्डनेस। हार्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी as far as mechanical engineering is concerned. So what is hardness? Hardness is the ability to resist scratching, cutting and abrasion. रेजिस्ट करना मतलब प्रतिकार करना। किस किस चीजों को प्रतिकार कर रहे हैं हम? स्क्रैचिंग को प्रतिकार कर रहे, कटिंग को प्रतिकार कर रहे और एब्राजन को प्रतिकार कर रहे। बराबर है? हार्डनेस इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू वियर। मतलब हार्डनेस जो है वो हमारा मेजरमेंट देता है कितना मटेरियल वियर आउट हो रहा है, कितना मटेरियल खराब हो रहा है। और हम सभी को पता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड क्या है? इज द हार्डेस्ट मटेरियल। देखो हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको जो फिगर में दिख रहा है कटिंग टूल्स दिख रहे हैं वहां पे, दूसरे मटेरियल को काटने की जो क्षमता है कि नहीं, उसे भी हम हार्डनेस कह सकते हैं। दूसरे मटेरियल को काटने की क्षमता, बराबर है? दैट इज नथिंग बट द हार्डनेस। टफनेस। Toughness is related to absorb the shocks and vibration. Toughness is the ability of material to absorb energy और vibration. Energy और vibration को absorb करने की जो ability है that is called as toughness. दूसरी definition है इसकी, it is the ability to absorb energy during plastic deformation up to fracture. मतलब जब तक मटेरियल फ्रैक्चर होता नहीं तब तक उसने कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। मटेरियल जब तक उस मटेरियल को जब तक हम फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो जब तक वो फ्रैक्चर होता नहीं तब तक उसने कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, इज नथिंग बट द टफनेस। और टफ मटेरियल कौन से हैं? कास्ट आयरन, कंक्रीट, हाई कार्बन स्टील, these are the tough material. These are the tough material. So toughness is related to absorb the shocks and vibration. Next, stiffness. दोस्तों स्टिफनेस जो है ये हम स्प्रिंग से रिलेटेड देखते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दो स्प्रिंग दिख रही है, लेफ्ट साइड की जो स्प्रिंग है वो नॉर्मल स्प्रिंग है और राइट साइड की जो स्प्रिंग है उसके ऊपर हमने फोर्स का इस्तेमाल किया। जैसे हम उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो इंक्रीज इन लेंथ है वो हमने डेल्टा से दिखाई गई। किससे दिखाई गई है? डेल्टा। तो डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफनेस? स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस टू द डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं डेल्टा का, उसको जो प्रतिकार करेगा वो जो प्रॉपर्टी है उसे हम स्टिफनेस बोलते हैं। बराबर है? अगर इस स्प्रिंग की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे रेलवेज में जो स्प्रिंग यूज होती है, तो हमें डेल्टा कम मिलेगा, मतलब वो स्प्रिंग बहुत स्टीप है। लेकिन वही स्प्रिंग अगर हम हमारे पेन के अंदर की स्प्रिंग लेते हैं, किसके अंदर की? पेन के अंदर जो स्प्रिंग रहती है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो उसकी लेंथ बहुत बढ़ जाती है, मतलब डिफ्लेक्शन हमें ज्यादा मिलता है, तो उसकी स्टिफनेस क्या है, कम है। इसकी स्टिफनेस क्या है, कम है। तो स्टिफनेस इज रिलेटेड विद द रिजिडिटी, स्टिफनेस इज रिलेटेड विद द rigidity and it is the resistance to deflection, it is the resistance to brittleness. So what do you mean by brittleness? जब मटेरियल बिना बता के टूटता है, जैसे आप फिगर में ग्लास दिख रहे होगे, ग्लास देखो धीरे धीरे नहीं टूट रहा, अचानक से टूट रहा है, बराबर, उसे हम बोलते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, टुकड़े टुकड़े में, बारीक टुकड़ों में ये टूटता है। सो अ मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल इफ व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस इट ब्रेक्स विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। जब मटेरियल के ऊपर फोर्सेस आते हैं और मटेरियल बिना बता के टूटता है, विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल बहुत हार्ड रहते हैं, ब्रिटल मटेरियल क्या रहते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, और उसकी डक्टिलिटी बहुत कम रहती, बहुत ही कम रहती है डक्टिलिटी। ब्रिटल मटेरियल ना तो स्ट्रेच करते हैं ना तो बेंड कर सकते, ब्रिटल मटेरियल को हम खींच नहीं सकते हैं ना ही बेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कास्ट आयरन एंड कॉन्क्रीट। और ब्रिटल मटेरियल जो है बारीक बारीक टुकड़ों में डिफॉर्म होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फटीग, द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जब मटेरियल के ऊपर फ्लक्चुएटिंग या साइक्लिक लोड आते, फ्लक्चुएटिंग या साइक्लिक लोड आते हैं, तो उसके वजह से मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है। उस मटेरियल को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फटीग। जैसे बार बार हम हैमरिंग कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो मटेरियल के अंदर क्या आ जाएंगी, क्रैक, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जब मटेरियल के ऊपर साइक्लिक या फ्लक्चुएटिंग लोड आते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फटीग। सो फटीग ऑफ मटेरियल ऑकर्स व्हेन इट सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और फ्लक्चुएटिंग लोड इज कॉल्ड एज फटीग। फटीग जो होता है ये फ्लक्चुएटिंग या रिपीटेटिव लोड के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल क्रैक्स इन अ मटेरियल। Fatigue is important because it is the largest cause of failure in bridges, aircraft and machine component. जो ब्रिजेस रहते हैं, पूल्स रहते हैं, एयरक्राफ्ट्स रहते हैं या मशीन के कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली लोड आते जाते रहता है, उसकी वजह से मटेरियल में क्रैक्स फॉर्म होती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज फटीग। ओके, the next definition is thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी बहुत आसान है। अगर वह मटेरियल इजीली हीट को फ्लो होने देता है, इजीली हीट को फ्लो होने देता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द इजीनेस ऑफ हीट फ्लो। कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये जो प्रॉपर्टी है, जब हम हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर और बॉयलर्स जब हम डिजाइन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। एंड यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वैट पर मीटर केल्विन। तो अगर हीट को इजीली फ्लो होने देने वाली जो प्रॉपर्टी हम उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखो मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है, जैसे हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं, हीट कर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके डायमेंशन चेंज होंगे, उसका डायमेंशन। अगर हम मटेरियल को कूल करेंगे फिर भी उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। तो जब हम मटेरियल के ऊपर हीट करते हैं तो उसके जो डायमेंशन चेंज होते हैं, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. So when heat is added to a material, its dimension get change. Okay, जब हम पटरियां देखते हैं रेलवेज की, तो रेलवे की पटरियों के बीच में थोड़ी गैप रखी गई रहती है। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसकी गैप कभी भी भर सकती है, बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. क्रीप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी.
Creep is a slow progressive deformation of material with a time constant at constant stresses and at high temperature. जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, टरबाइन की ब्लेड्स देख रहे हैं और बॉयलर देख रहे हैं हम, तो देखिए ये जो है बहुत दिन तक काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं और कांस्टेंट स्ट्रेसेस वहां पे आते रहते हैं। तो उसके वजह से ये जो ब्लेड्स है ये बॉयलर से धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। तो धीरे धीरे होने वाला जो डिफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज क्रीप। और दो कंडीशन उसकी कैसी है, वहां पे कांस्टेंट स्ट्रेसेस भी आने चाहिए और हाई टेम्परेचर भी रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बेकार चीज है, ये हमारे कोई काम की चीज नहीं है। कौन सी? क्रीप। ओके, क्रीप की 3 स्टेजेस रहती है, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप एंड टर्शियरी क्रीप। तो these are the 3 types of creep. So what is creep? Creep is a slow progressive deformation of material at a time with a time at a constant stresses and at high temperature. Density. So what is density? कितने वॉल्यूम में कितना मटेरियल भरा हुआ है, कितने वॉल्यूम में कितना मटेरियल भरा हुआ है, that is called as density. So density of material is defined as the mass per unit volume. Density of material is defined as mass per unit volume and its unit is kg per meter cube and its unit is kg per meter cube. बताओ मुझे what is the density of water? 1000 kg per meter cube. Density of water is 1000 kg per meter cube. Okay. The next definition is hardenability. Hardenability. Hardenability is the capability to be hardened by heat treatment. ये देखिए स्प्रॉकेट आपको दिख रहा होगा, इस स्प्रॉकेट को हम हीट ट्रीटमेंट के साथ इसके हार्डनेस बढ़ा रहे हैं, बराबर है। तो ये कितने जल्दी ये हार्ड हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट की वजह से, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज हार्डनेबिलिटी, बराबर। हीट ट्रीटमेंट करके हमारा एक अलग ही चैप्टर, उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो मटेरियल हीट ट्रीटमेंट के बाद कितने जल्दी हार्ड होता है, कितना लेट हार्ड होता है, उसको मेजर करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं हार्डनेबिलिटी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे और आप अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते होंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी डाउट्स रहता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग।